All right, dear students, so we are finally ready for the session. So we are starting it, right? And whosoever will be coming in the session, we will be adding them. Till then, now I think we should start because it's 9:30 already. So let's begin the session. We are going to start chapter number 16, that is subject verb agreement, right? You can check it on page number 60. राइट यू कैन टेक आउट योर बुक एंड चेक पेज नंबर 60. पेज नंबर 60 पे आप लोग इस चैप्टर को निकाल सकते हैं और वहां पे चेक कर सकते हैं. दैट इज चैप्टर नंबर 16 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सो लेट्स बिगिन इट कि क्या है इस चैप्टर में, व्हाट इज इट एंड एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द वोकैबुलरी पार्ट, राइट? यू कैन राइट डाउन इट और यू कैन सिंपली टेक स्क्रीनशॉट एंड लेटर यू कैन राइट इट, राइट? दैट्स ऑल डिपेंड ऑन योर चॉइस. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स इसका, राइट? सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस वन. वोकैबुलरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट वोकैबुलरी वी हैव इज ब्रॉडली, BROADLY. ब्रॉडली, ब्रॉडली मीन्स बेसिकली यहाँ पे जो हमारे चैप्टर में यूज हुआ है दैट इज जनरली. ठीक है, चैप्टर में जो इस वर्ड को यूज किया गया है यहाँ पे इसका मीन्स क्या है जी स्टूडेंट्स? जनरली, यानी कि सामान्य तौर पर, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ब्रॉडली मीन्स व्हाट? BROADLY. ब्रॉडली मीन्स जनरली, यानी कि सामान्य तौर पर. GENERALLY. All right, moving on. Second word we have is includes. Word number 2 we have is INCLUDES. Includes. Includes means क्या होता है dear students? Includes means contain करना, यानी कि उसके अंदर होना. Like you can understand it in a very simple manner. How? Let me tell you. This session includes the chapter explanation part as well. राइट, ऊपर ऊपर से हमारे को क्या दिख रहा था? सिर्फ वोकैबुलरी है. बट दिस सेशन आल्सो इंक्लूड्स द चैप्टर एक्सप्लेनेशन. ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी हम लोग इसी में ही इंक्लूड करेंगे. यानी कि ये सेशन जो है ये क्या भी कंटेन करता है? क्या कंटेन करता है? चैप्टर एक्सप्लेनेशन के पार्ट को भी कंटेन करता है. टिल नाउ व्हाट वी वर डूइंग? We were only doing vocabulary in one session. In the first session we used to do vocabulary, right? And then in the further session we used to do the chapter explanation part. But today in this session only what we are going to do, we have included or we include chapter explanation as well, right? So include मतलब क्या होता है? Contain करना, right? So moving on to the third one. I hope that this one is clear. Includes is clear to you. Includes means contain करना, CONTAIN, right? Moving on, next one we have is word number 3, that is concerned. 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 Concerned means give your attention to something, यानी कि आप अपना attention कहीं और लेकर के जाएं. Let's suppose कि आप लोग अभी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है? So many students are there, right? So what you are doing, you are taking your attention towards them. ठीक है, तो वो that is wrong. You must not do that. Your concern should be in my session, in my class, right? तो your concern means your attention. आपका जो attention है that must be here, है ना? आपका attention जो है वो कहाँ होना चाहिए? आपका attention मेरी screen पे होना चाहिए. Whatever I am showing to you, your concern must be that. Are you getting my point? Those who are writing nonsense things, please stop doing that. There is no need of doing that. All right, moving on. So concerned means what dear students? Give your attention to something, यानी किसी चीज को आप अपना attention देते हैं, then we say concerned, right? Next word we have is plenty. PLENTY. Plenty means a lot. Plenty means what? A lot. Plenty means बहुत सारा. ठीक है, so let's suppose today is मकर संक्रांति, right? So I have plenty of kites. मेरे पास क्या है? Plenty of kites है. ठीक है, बहुत सारी kites मैं already लेके आ चुका हूँ, परचेज करके ले चुका हूँ, ला चुका हूँ. So that is plenty. Plenty means बहुत सारी kites का मतलब plenty means बहुत सारा होना. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सूट. ठीक है, आपने जनरली ऐसा देखा होगा लोगों को, जनरली पीपल से कि ये क्लाइमेट मुझे सूट नहीं होता, ये वेदर मुझे सूट नहीं होता. सो व्हाट, ये वेदर मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है. ठीक है, बस से जाना मुझे सूट नहीं होता. इधर आई गो बाय कार और बाय ट्रेन. ठीक है, बस में मुझे सूट नहीं होता. तो समथिंग लाइक दैट. सूट मतलब क्या होता है कि आपको उसमें कंफर्टेबल होता है या नहीं होता है. तो सूट बेसिकली मींस बीइंग कंफर्टेबल और बीइंग कन्वीनियंट, है ना? किसमें आप कन्वीनियंट ज्यादा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
I hope that all the 5 vocabularies are clear to you. Not so many vocabularies we have in this session. Only 5 are there because this chapter is very small. We can finish it in by today itself, है ना? हम आज इस चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं. तो basically what I'm trying to say is there are only 5 vocabularies, right? So that much only for vocabulary. Now we are moving towards the chapter explanation part. ठीक है, अब हम जो मूव ऑन कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं. ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मेरे को सिंपली चैट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है, आई एम चेकिंग द चैट सेक्शन एज वेल. So if you have any query, you can write in the chat section. All right. So let's move on with the chapter explanation part. Right, see, first of all, whatever I'm teaching to you, you have to see that. ठीक है, जो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है and whatever I'm speaking, you have to focus on that thing first, right? Don't say कि सर बुक में तो ऐसा लिखा हुआ है, बुक में ये लिखा हुआ है, बुक में वो लिखा हुआ है. First of all, whatever I'm teaching, you have to focus on that. ठीक है, एक बार आप वो पढ़ लें. After that, you have to do reading of book. आपको बुक की रीडिंग करनी है. Whatever is written in the book, you have to do that. Then if problem persists, अगर फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है, then you have to ask to me, right? So what I will be doing, I will be sharing my screen as I'm doing right now, right? And I will be explaining you each and everything, right? So let's begin with that. First of all, we have a sentence can be broadly divided into 2 parts. Broadly, अभी अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, right? जल्दी से chat section में लिखिए, बताइए what is the meaning of broadly, right? Fast in the chat section, within 1 minute. Within 1 minute, you have to write in the chat section what is the meaning of broadly. BROADLY. Come on, fast. Come on, dear students, fast. You have to write the meaning of broadly. BROADLY. This word. Generally, very good, Bhavya. Bhavya Duggad has given the right answer. All right, chaliye. Students, please pay attention in your class. All right, moving on. A sentence can be broadly divided into 2 parts. Broadly मतलब क्या होता है? Generally, यानी कि सामान्य तौर पर. तो sentence को हमने क्या किया है? Divide कर दिया है कितने parts पे? 2 parts में. सामान्य तौर पर generally हम लोग इसको इतने parts में divide करके चलते हैं. What are those 2 parts? The first one is the subject, right? And the next one is the predicate. First तो हमारा subject होता है और second हमारा क्या हो जाता है? Predicate हो जाता है, right? ओके, चलिए, तो यहाँ पे आप समझते हैं कि सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है सेंटेंस में. सबसे पहले हम उसका रिवीजन कर लेते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद सम एग्जांपल्स. द कैट स्लीप्स ऑन द सोफा. Anuj and Farhan were good singers. A brave young man saved us from danger. We went on a holiday. देखिए, ये क्या है? कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं. Now you can simply understand कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इन द मैनर कि जो पर्सन एक्ट कर रहा होता है, जो सेंटेंस में एक्शन कर रहा है, व्हाट आई एम सेइंग, जो सेंटेंस में एक्शन कर रहा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. द वन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन और द वन हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, या जिस बारे में आपने बात करी है, वही आपका क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट हो जाता है, राइट? इस सेंटेंस में आप देखिए, द कैट स्लीप्स ऑन द सोफा. हु स्लीप्स ऑन द सोफा? Come on, write in. Be ready with the chat section. Keep your fingers on the keypad on the keypad only. Yes. Who sleeps on the sofa? Come on, write. Who sleeps on the sofa? Everyone has to answer. Who sleeps on the sofa? No, no audio, no audio. Yes, very good. Chirag Jagitia, very good. Cat sleeps on the sofa. वेरी नाइस. सो बेसिकली हु स्लीप्स ऑन द सोफा? द कैट स्लीप्स ऑन द सोफा. तो द कैट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? हमारे लिए सब्जेक्ट हो जाएगी. वेरी गुड अब्बास. तो ये कैट जो हो जाएगी डियर स्टूडेंट, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट हो जाएगी. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट. अनुज एंड फरहान वर गुड सिंगर्स. अरुण और फरहान जो हैं वो कैसे सिंगर्स हैं? अच्छे सिंगर्स थे. सो हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट? किसके बारे में हमने बात करी? हु वर गुड सिंगर्स? गुड सिंगर्स कौन थे? हु वर गुड सिंगर्स? कम ऑन, राइट इन द चैट सेक्शन फास्ट. Who were good singers? Anuj and Farhan. Very good, Chirag Jagitia.
Anuj and Farhan were good singers. तो basically यहाँ पे who were the good singers? Anuj and Farhan were the good singers. तो यहाँ पे किन के बारे में बात हो रही? Who is being talked about? Anuj and Farhan. In the very same way, who saved us from danger? हमारे को danger से किसने बचाया? A brave young man. एक brave यानी कि बहादुर. Brave means क्या होता है? बहादुर. और young मतलब होता है जवान, मतलब young जो होता है. और मैन अब तो मैन तो आपको पता ही है. तो एक बहादुर यंग मैन ने हमारी क्या करी? हमारी लाइफ को डेंजर से बचाया. सो अ ब्रेव यंग मैन विल बी योर सब्जेक्ट, राइट? नाउ नेक्स्ट वी वेंट ऑन ए हॉलीडे. हु वेंट ऑन ए हॉलीडे? हु वेंट ऑन ए हॉलीडे? वी वेंट ऑन ए हॉलीडे. सो द highlighted words, the cat, Anuj and Farhan, a brave young man, and we, these all are what? Subjects. Now what is this remaining part? ये remaining part जो है वो क्या बन जाएगा हमारा? That will be a predicate. वो हमारा predicate बन जाएगा. ठीक है? In first sentence, sleeps on the sofa. Sleeps on the sofa will be a predicate. In second sentence, were good singers will be my predicate. Saved us from danger, that will be a predicate. And went on a holiday, that will be a predicate. I hope that is clear. So in this way you can understand the one who is performing the action, that is subject, and the remaining part of the sentence is predicate. I hope that is clear to you. यस, चलिए मूव ऑन करते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं. बेटा आगे यहाँ पे क्या डिस्कस करना है हमारे को? टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट. टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है कि सब्जेक्ट किस किस टाइप के हो सकते हैं. अंडरस्टैंड दैट. देखिए बच्चों, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट. ठीक है, आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं. हाउ डू यू नो अबाउट इट ऑलरेडी? लेट मी टेल यू. देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट मींस जब कोई एक्शन कर रहा है. सब्जेक्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा, जस्ट नाउ वी स्टडीड द व्हाट इज सब्जेक्ट. द वन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन. जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वही सब्जेक्ट है. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Now, if that subject means the person who is performing the action is singular, यानी कि जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या है? अगर सिंगुलर है तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा. हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट? बट इफ द वन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, यानी कि जो वर्क कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, वो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा. इट इज दैट सिंपल. सो बेसिकली व्हाट माय पॉइंट इज कि अगर एक्शन किसी सिंगुलर ने किया है, सिंगुलर नाउन ने किया है, तो दैट विल बी अ सिंगुलर सब्जेक्ट. और किसी प्लूरल नाउन ने किया है तो दैट विल बी अ प्लूरल सब्जेक्ट. सो दैट विल बी अ प्लूरल सब्जेक्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसको एक बार हम वापस से थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इन एग्जाम्पल से समझते हैं. यू विल टेल मी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा. देखो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यू हैव टू राइट एस इन द चैट सेक्शन. फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट यू हैव टू राइट SS, and for the plural subject you have to write PS. ठीक है, I will ask one by one, you have to answer in the chat section. So let's start with the example number 1, that is A. The cat sleeps on the sofa. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? मीन्स SS या PS. Write in the chat section fast. In the very first example, the cat sleeps on the sofa. Very good, dear students. Very nice. Very nice. Bhavya, very good. Abbas, very good. Pragati, Chirag, Ayan, very good. Very good everyone. तो subject will be what? Singular. ये subject हमारा singular हो गया. How simple it is. Yes. Okay. Next. Anuj and Farhan. This is interesting one. चलिए इसको बताइए, ये singular subject है या plural subject है? Now we are on the second one. Now we are on the second one. B example we are Anuj and Farhan. Chirag has written PS. Abbas has written PS, Bhavya has written PS, Pragati has written PS. Very nice, dear student. Very good, everyone. Anuj and Farhan are two people, are two person, right? Anuj एक अलग person है और Farhan एक अलग person है. So ये दोनों मतलब ये अलग अलग person है तो plural हो जाएंगे क्योंकि दो person denote हो रहे हैं. Very nice, dear student. You all are doing very well. A brave young man. Come on, answer me this one. C1. A brave young man. इसका बताइए जल्दी से. SS और PS. Very good. Chirag, very good. Abbas, very good. Bhavya, very good. Ayan, very good. This is singular. Pragati, very nice. Very good. चलिए, so this one is your singular subject. Now move on to the last one. Okay, done. That is done. C is done. Now we are moving to the D1. Last one, D. We went on the holiday. इसका बताइए जल्दी से. D वाले का आंसर कीजिए मुझे. In the chat section only.
PS, 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 PS. Very good. चिराग, प्रगति, अब्बास, भव्य, everyone. Very good. ऑल राइट, चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट बहुत इजीली समझ में आ गए हैं। देखिए सिंगुलर हमारे को पता ही है, ये मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, देयर इज नो नीड ऑफ दिस। ये हम लोगों ने सिर्फ एग्जाम में अगर आता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा ना, सिंगुलर सब्जेक्ट पूरा लिखना पड़ेगा और प्लूरल सब्जेक्ट पूरा लिखना पड़ेगा। ये तो अभी हम लोग चैट सेक्शन में इजी करने के लिए हम लोगों ने कर दिया था, अदरवाइज इन एग्जाम यू हैव टू राइट कंप्लीटली सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, पूरी स्पेलिंग लिखनी होगी। चलिए अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में और कौन कौन आ सकता है, ही, शी, इट और नेम, किसी का भी नेम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट में ये सारी चीजें भी आपके पास में आ सकती है। बट इन प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन आएगा, वी, यू, दे, या बहुत सारे लोगों के अगर नेम आ रहे हैं तो, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 2 में अनुज एंड फरहान, दो पर्सन के नेम आ रहे थे, दो स्टूडेंट्स के नेम आ रहे थे यहाँ पे, तो हम लोगों ने उसको प्लूरल माना था, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही नेम आता है, सिर्फ अगर एक नेम होता, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। आई होप सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट आप लोगों को पूरे तरीके से क्लियर है। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन राइट इन द चैट सेक्शन। अगर कोई डाउट है आप लोगों को, यू कैन सिंपली राइट इन द चैट सेक्शन। चलिए ठीक है, इफ देयर इज नो डाउट देन लेट्स मूव अहेड। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पर्सन्स की। देखिए सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, कि सब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में भी डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पर्सन्स। टाइप्स ऑफ पर्सन्स के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, नाउन या प्रोनाउन में हम ये चैप्टर में डिस्कशन करते हैं इस चीज का। तो हम लोगों को अभी डिस्कस क्या करना है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हम लोगों को डिस्कस करना है। क्या होता है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, आप समझिएगा इसको, बहुत इजीली आप समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको इस तरीके से समझिए, राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, ठीक है, मैं भी बोल रहा हूं, तो जो पर्सन बोल रहा होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में आता है। आई रिपीट, अभी कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, सो आई विल बी फर्स्ट पर्सन। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, फर्स्ट पर्सन क्लियर हो गया, यानी कि जो बात कर रहा होता है, जो बोल रहा होता है, दैट इज योर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर अटेंडिंग द क्लास, राइट, तो सो यू विल बी सेकंड पर्सन, जो यू है हमारा वो क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन हो जाएगा। बट लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट विराट कोहली, विराट कोहली इज द इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन, तो विराट कोहली ना मैं हूं ना आप हो, ना मैं हूं ना आप हो, ही विल बी द थर्ड पर्सन। क्यों, क्योंकि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं और वो यहाँ पे अभी नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। इसको सिंपली वापस से समझिए, जो बोल रहा होता है बेटा वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। आर यू क्लियर विद दिस, अभी राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, ठीक है, सो आई विल बी फर्स्ट पर्सन, you are listening so you will be third person, and we second person, and we are talking about the Virat Kohli so he will be the third person. So इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं बहुत सिंपली, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, चलिए अब इसको आप समझिए, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और वी आता है डियर स्टूडेंट। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और वी आता है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में कौन आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है। सेकंड पर्सन में ओनली यू, ठीक है, सेकंड पर्सन में हमेशा यू ही आएगा और कोई नहीं आता। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे और नेम, किसी का नेम, ठीक है। यानी कि देखिए वापस से समझिए, फर्स्ट पर्सन में तो कौन कौन आता है, आई और वी आ जाते हैं, सेकंड पर्सन में यू आ जाता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे और नेम आ जाता है। इसको इस तरीके से समझिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ये बोलता हूं वी आर स्टडिंग, अगर मैंने क्या कहा, वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, we are studying English grammar, so that will also be the part of first person। क्यों, क्योंकि उसमें हम है, we means क्या होता है, हम, तो हम यानी कि सबके बारे में बात हो रही है कि नहीं हो रही है, जब सबके बारे में बात हो रही है, हम सबके बारे में बात हो रही है, तो वो फर्स्ट पर्सन के अंदर में ही आता है, ठीक है। अगर हम किसी के बारे में बात करेंगे, लेट्स सपोज मैंने कहा आयान इज सिटिंग प्रॉपर्ली, ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग,
to whom, to each and every student of the class. And about whom I am talking, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, आयान के बारे में बात कर रहा हूँ. So आयान will be the third person. I hope that is clear to you. I and we is first person, you is second person, and he, she, it, they और name are third person. ठीक है. अब इसमें कौन सिंगुलर होते हैं, कौन प्लूरल होते हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन टुमारो सेशन एंड यू विल बी टेलिंग मी. आप लोग मुझे बता रहे होंगे कि इसमें कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है. आई विल नॉट टेल यू, यू विल हैव टू टेल मी, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर today's session. Thank you everyone for attending the session. Bye bye, have a great day.